जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस वन यानी पार्ट वन को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको स्टडी किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्लियर्ड यू व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी। इट इज मीन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नो द माइक्रोबियल ग्रोथ and reproduction article today we want to discuss. Now, what is article name? The microbial growth and reproductions. So question is arise, write, explain and details overview of the microbial growth and reproduction. जो क्वेश्चन आपका है और किस तरह साचा वे आएगा कि माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो नाम है। एक माइक्रोबियल का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ का मतलब उनकी ग्रो है यानी उन्होंने मल्टीप्लाई होना है, इंक्रीज देयर साइज एंड नंबर्स, एंड रिप्रोडक्शन आर दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन विच सेक्सुअल एंड asexually they reproduce. But here we are discussing the asexual reproduction, because the type of the reproduction we are discussing here, one is the binary fission, buddings and spore formation. So first of all I was discuss that the microbial growth and reproduction are what type of these process, or these are the fundamental process. These are the fundamental process in which they are fundamental process. Now the word is that, and what is the how they are fundamental? They are a fundamental process in which in the microbiology, in the microbiology, yani the growth and reproduction are the fundamental process in microbiology. And now I discuss how they are fundamental, because they includes multiplication of microorganism, which means that is a clear cut meaning of that. The growth and reproduction mean that is they are the growth and reproduction, because that two terminology are used here. One is growth and other is the reproduction. So these are the growth and reproduction are the fundamental process in microbiology. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है ये फंडामेंटल प्रोसेस है. व्हाट मीन ऑफ फंडामेंटल? मीन बेसिक मीन प्ले अ सेंट्रल रोल, यानी ये बुनियादी तरीकाकार हैं किसमें? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. यानी माइक्रोबायोलॉजी इज दैट टाइप ऑफ द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं. और व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज species, are those agent, are those pathogens in which those can be seen with our naked eye, not with our naked eyes, or with a microscope only. The word micro used for the organism only seen with the microscopes, or these are mostly harmful, mean say pathogen. The word pathogen taken from the Greek word pathogas means a harmful agent. Now we are I clear you the microbial growth, that is the single terminology. Microbial growth means that is the binary fission, buddings and spore formation. How the binary fission take place? Binary mean two, fission mean split in two, यानी दो में किसी चीज का डिवाइड हो जाना,
बट जाना, तकसीम हो जाना, वो क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन। तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फिशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बैक्टीरिया एंड आर्की। तो इसमें दो बैक्टीरिया एंड आर्किया, बैक्टीरिया आर्किया। Oh, mean, what is mean? Bacteria, that is the microorganism through which we are used in biotechnology, medicine, or in the other environmental science. We are used bacteria. Archaea are also the types of bacteria. Mean these are the ancient organism. Ancient means the primitive organism. The word archaea used for archaea. The mean archaea mean first are the primitives. In archaea mean first are the archaea mean. I write it archaea mean the first are the primitive. First are the primitives. That is mean of the archaea. Mean first are the primitives. In mean ancient time, पुराने वक्तों में जो बात की गई कि जी आर्किया according to the science, the word I am saying to you, these only discuss the science, not other Quran Majid and etc. Book. Only the scientific science is the knowledge, that is the result or the observation and the work of the scientist. So, not something, not a reality. They are bound of the limits of real informations. Bacteria, archaea, those in which we are discussing the binary fission. यानी binary fission को हमने डिस्कस करना है with the helping of bacteria and archaea. यानी ये binary fission के तहत है. तो I draw the cell of bacteria here. First of all, a bacterial cell in this such a way, that is the bacterial cell, or that it's that is first name is the cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane. And second, it is the cell wall. And other word we can say that is the cytoplasmic membrane, also called the cell membrane. So that is the covering to the cytoplasm. The cytoplasm membrane is that because that is cytoplasm. That is the cytoplasm. That is the cytoplasm. So that red line show to the red line जो है वो किसको शो कर रही है? That red line show to the cytoplasmic membrane. Why it is called the cytoplasmic membrane? Because it cover to the cytoplasm. So it is called the cytoplasmic membrane and also called the cell membrane. Another is that is the black lines show to the cell wall. That is the cell wall of the bacterial cell. That is the bacterial cell. Here is the some flagella, or someone have more than one flagella, and it means because that is the variety of the cell of the bacterial cell. So one is the, and other I writes here is the that layer which are the green line that show to the capsule of the bacterial cell. What is capsule? That is a particular structure which covers to the cell wall, cell membrane, and the whole
ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को जिसने कवर किया है वो कैप्सूल है, लाइक आ कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन, कि उसमें मेडिसिन बंद होती है, तो इसी तरह इसने भी तमाम सेल को बंद किया होता है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। नो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन दैट टाइप ऑफ द, दैट इज द मोस्ट कॉमन, इसका जो प्रोसेस हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है बाइनरी फिशन में, जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कौन सा है, व्हाट इज प्रोसेस? तो प्रोसेस इन विच द, दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड है, इन विच वन सेल यानी बैक्टीरिया एंड आर्की, दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट common method of the reproduction, most common method of reproduction है reproduction for the binary fission। किसके लिए है? बाइनरी फिशन के लिए, बाइनरी फिशन। और इन विच बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है कि a single cell divide into two cell, यानी एक वन सेल जो होता है, सिंगल सेल जो होता है, वो डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है इनटू, किसमें? टू आइडेंटिकल सेल, यानी दो आइडेंटिकल सेल। तो एज डियर स्टूडेंट्स, आप जब इस बात को देखें कि एक आइडेंटिकल का लफ्ज आ गया, तो इट मीन दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी बात आपके सामने आइडेंटिकल की आ जाए, तो फिर इस मीन कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होगी और लीड द माइटोसिस। हियर इज द डिवीजन आल्सो टेक प्लेस इन द, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। यानी इसमें कौन सी डिवीजन टाइप ऑफ सेल होगी? तो माइटोसिस है, दैट इज द सेल डिवीजन। तो हम दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं कि दैट इज द इक्विवेलेंट डिवीजन। द अदर नेम ऑफ माइटोसिस द इक्विवेलेंट division, as such we can say to the meiosis, that is the reduction division. So here is mitosis, the identical cell of the binary fission, buddings or spore formation, and also binary with multiple fission. Another type which is not discussed here, the multiple fission, binary fission, multiple fission, budding, spore formation are the ये तमाम जो हैं वो क्या हैं? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि बाइनरी फिशन है, और बाइनरी फिशन में प्रोसेस की जब बात आई तो मैंने बताया आपको कि दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड। किसका है? रिप्रोडक्शन का। कौन? बाइनरी फिशन। द बाइनरी फिशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। आगे मैंने आपको लिख के बताया कि दैट इज द बाइनरी फिशन है। और बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है? व्हाट हैपन इन द बाइनरी फिशन एज इट इज टेक अ स्टार्ट। सिंगल सेल क्या है? आई राइट द सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स। तो आई वाज टेलिंग यू, मैंने आपको बताया कि जब आइडेंटिकल लफ्ज आ जाए तो आपके ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए, द बात टिक इन योर माइंड दैट identical mean asexual reproduction and the mitosis is take place. So here is the example of the bacterial cell. So I was formed it in this way. The first is the first layer or the first line show that the capsule of the bacterial cell, and other line black show to the cell wall, and other the inner line, that is the cytoplasmic membrane, that is the red line. The inner red line show to the cytoplasmic. Now here I formed the genetic materials. Azal, that is the real things. That is the genetic material. That is genetic material means that is the strand or the thread
strand are the thread of DNA. That is the strand are the thread of DNA, or DNA is the DNA or RNA, because some of the bacterial cell contain RNA and most cell contain DNA. So that is the hereditary material, mean DNA. Now the DNA is the single stranded. Now we are going to discuss the step of the process. So what is the first step of the process? The first step is the process is that in which the DNA replicates. DNA क्या करेगा, यानी ये हमारे पास आई अगेन राइट, अगर द सेल है तो सेल मीन बिकम, द सेकंड स्टेप इज दैट क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है. कैसे, मैं ओनली ड्रा, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंड. Now it is replicate into two identical copies. Here is the, that is become a double, यानी two standards, यानी it mean ये क्या हो गया, duplicate, यानी it is the replication of the DNA. क्या है ये, replication. Replication of the DNA mean के DNA forms two copies. DNA form the two. DNA form its two copies. यानी DNA जो है वो रेप्लिकेट होता है, स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है मैनी इनटू द टू कॉपीज, यानी टू अपने जैसी आइडेंटिकल कॉपीज के अंदर जो है वो हो जाता है. यानी मैं अगर कहूं कि यहाँ पे वन इज द अदर स्टैंड, ये है हमारे पास एक और स्टैंड, तो ये भी उसी तरह एज सच ही जो है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट हो जाएगा इस तरह से, इन सच ऐसा. ठीक होगी बात. जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि वन स्टैंड जो है वो इनटू टू कॉपीज और अदर स्टैंड आल्सो इनटू टू कॉपीज, यानी सिंगल स्टैंड जो है वो टू कॉपीज के अंदर डिवाइड हो रहा है, यानी एक से आगे, यानी डुप्लीकेट हो रहा है. ठीक है, यानी एक स्टैंड से दो, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इससे एक, यानी दिस इज द ओरिजिनल, ये मैं राइट कर रहा हूं, ये जो था वो क्या है, ओरिजिनल स्टैंड है, और ओरिजिनल का ये आगे कॉपीज बनी, ब्लैक लाइन है. इसी तरह मैंने यहाँ पे ड्रा किया कि अगर हमारे पास ये एक और लाइन है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये ब्लैक लाइन जो है उसकी कॉपी बनी. तो इस तरह जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है वो अपने जैसी एक और कॉपी बना लेता है. इस तरह उसने क्या बताया कि एक सिंगल जो वो डिवाइड इनटू टू कॉपीज. अब मैं आता हूं इसकी जो रियल फॉर्म है, यहाँ पे किस तरह से आपको मैं बता दिया कि इस तरह से. अब हम आते हैं जी इसके पास कि हियर इज अनदर कॉपीज. ठीक है, यानी एक ने दो में, तो इस तरह से ये देखें डियर स्टूडेंट सामने, इस तरह से एज सच. तो इस तरह से फिर आपने देखा कि एक जो है वो टू कॉपीज के अंदर जो है वो जो हो जाता है. नाउ द सेकंड स्टेप इज दैट, यानी ये था हमारे पास कि एक जो है वो एक डीएनए का वन स्टैंड फॉर्म्स इट्स टू कॉपीज, कि वो एक जो है वो दो कॉपी कैसे बनाता है. जिस तरह के आगे सेल जो होता है, एक सेल, यहाँ पे जनरली अगर मैं एग्जांपल दूं बात की, तो एक सेल से ये शॉर्टली दैट इज द वन सेल, और दैट वन सेल इज डिवाइड इनटू टू सेल, यानी ये एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है. ये मैंने आपको शॉर्टली एग्जांपल बताई. तो हियर इज द क्रोमोसोम्स एंड हियर इज द क्रोमोसोम्स जो है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एज अ हेरेडिटरी मटेरियल. क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, देयर इज नथिंग ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता. तो क्योंकि दीज आर द प्रोकैरियोट्स, तो इस वजह से ये भी एक बात ध्यान में रखें कि बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और नो क्लियर आर द ट्रू न्यूक्लियस. तो व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियस? दैट न्यूक्लियस व्हिच इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड, that type of the nucleus which is bounded by the membrane is called true nucleus.
वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होता है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, उसमें न्यूक्लियोलस भी आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देयर इज नथिंग मेम्ब्रेन विच शो अ पार्टिकुलर न्यूक्लियस, सो द सिंगल स्टैंडर्ड or the double stranded DNA is present in the cell of the bacterial। तो मैंने आपको बताया कि एक सेल आगे दो में डिवाइड हो जाता है, ये मेरे शॉर्ट एग्जांपल आपको दी। फिर उसके बाद ये सेल को मैंने उसके पार्ट्स के हिसाब से बनाया। तो यहाँ पे मैंने आपको डीएनए भी बताया और यहाँ पे डीएनए की डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन बताई। अब क्या होता है, ये जो सेल होता है ये सेल लॉन्गेट हो जाता है, यानी ये सेल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपने साइज में लंबा हो जाएगा। इस तरह से लंबा हुआ तो इट मीन क्या हुआ, ये जो रेप्लिकेशन है ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी अपने अपने जो वन इज द, ये मैंने इस तरह से आपको बताया कि एक ऑपोजिट पोल की तरफ ये स्टैंड चला गया जो डुप्लीकेट हुए थे, जो रेप्लिकेट हुए थे, और दूसरा जो है वो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाता है, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि नाउ द सेल बिकम इलोंगेट। यानी यहां पे हम ये लिखेंगे कि सेल जो है, सेल इलोंगेट हो गया, सेल लंबा हो गया, ठीक है। तो लंबे होने के साथ साथ जो डीएनए होता है, जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, जो डीएनए कॉपीज बनाई जिसने, वो क्या हो जाता है, वो ऑपोजिट पोल की तरफ, these are that pole और that pole, they are opposite to each other। यानी हम यहां पे मूव करेंगे कि डीएनए जो है वो स्ट्रैंड मूव, डीएनए स्टैंड मूव टू दी ऑपोजिट पोल, मूव टू द ऑपोजिट पोल, यानी ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं इन द सेल। किसमें, इन द सेल, सेल के अंदर। अब नो द व्हाट इज द थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, यहां पे क्या होता है जी, कि जो सेल वॉल होती है, यानी हम यूं समझे कि फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल। थर्ड हेडिंग हमारे पास क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल। मीन क्या है कि एक सेल से दो बनने वाले, जैसे मैंने यहां पे आपको बता दिया कि दैट इज द पेरेंट सेल। ये जो था वो क्या है, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट सेल था, और पेरेंट सेल से आगे मैंने बताया कि डॉटर सेल बन जाते हैं, और टू डॉटर सेल यानी सिंगल सेल डिवाइड इनटू, जैसे मैंने यहां पे लिखा, तो ये जो इशारा था वो इसकी तरफ था कि आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल सेल, डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल। कितने बने जी यहाँ पे, टू डॉटर सेल जो हैं वो बने हैं, विच आर आइडेंटिकल, जो कि मिलते जुलते हैं, किससे, अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल हैं, यानी सेम है लाइक द पेरेंट सेल। तो यहाँ पे ये मैंने कहा कि सेल बिकम लॉन्गेट, लंबा हुआ, और डीएनए जो है ये दैट इज द स्टैंड ऑफ डीएनए, और दैट इज आल्सो द स्टैंड ऑफ डीएनए, ये भी डीएनए है, ठीक है। और दोनों क्या हो गए। अब अगली जो स्टेप था कि फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, जब फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल होगा तो आपकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ धंसेगी, इन्वेजिनेट करेगी। तो यहां पे मैं आपको बना के बताता हूं किस तरह से ये इन्वेजिनेट होते हैं। आप यू कैन सी क्लियरली इन सच अ, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाउ द सेल आर फॉर्म, इस तरह से। तो फिर आप देखें इसमें आपका जो डीएनए था वो इन सच अ वे इस तरह आ गया, और इस तरह से, और इसके अंदर जो अदर इंक्लूजन होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के बाद साथ जो बाकी चीजें हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स हैं या वैक्यूल्स हैं, और अदर द इंक्लूसिव बॉडीज like organelles are present but there is no specified organelle because they are prokaryotes हैं। तो इस तरह से जो डीएनए था अपने अपने सेल के अंदर मुंतकिल हो गया, शिफ्ट हो गया, और ये था क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यानी मैंने आपको बता दिया
कि सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स, यानी और कैप्सूल भी साथ ही है। बेसिकली तो हमने चूंकि शॉर्टली बनाया कि हेयर इज द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हुई, मीन अंदर की तरफ धंस गई। कंस्ट्रिक्शन का मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीज को दबा देना किसी जगह से, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कंट्रैक्ट होना। मुराद कंस्ट्रिक्ट मीन कंट्रैक्ट होना, तो ये कंट्रैक्ट हो गया इस तरह से और इन्वेजिनेट हो गया अंदर की तरफ। अब यहां से ये मुकम्मल तौर पे ऐसे एक लाइन आएगी दैट डिवाइड इन दैम, इस तरह से, ठीक है, जो इन दोनों को आपस में अलहदा कर देगी। इस तरह से फिर हम एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक सेल से, यानी एक सेल से जो है वो दो सेल बन जाए। क्लियर होगी बात? इस तरह से वन सेल जो है, जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल इलोंगेट हो गया, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल आ गए कि एक सेल जो है वो किस तरह से, बात ये हो रही थी डॉटर सेल बनने के दौरान व्हाट आर द चेंज टेक प्लेस, द चेंज आर टेक प्लेस द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द black line show to the cell membrane and the red line show to the cell wall. Always the cell membrane is inner and the cell wall outer to the cell membrane. Always think that, dear students, कि the cell wall always in plant or in other organism, those which have the cell wall is outer membrane, or that is the outer and hard membrane. But the cell membrane is elastic and restoring membrane, or that is present inner to the cell wall. Or here the cell membrane and cell wall are constrict, mean contract in the center, contract in the centers. वो कहता है कि ये जो कंस्ट्रिक्ट हो रही है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों मैं लिख रहा हूं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन जो हैं ये क्या हो रही हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं। कहां से? कंस्ट्रिक्ट एट द सेंटर, यानी सेंटर से कंस्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है, मैंने सादा लफ्ज में बताया कि दे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इनवेजिनेट, अंदर की तरफ चली गई, मीन कंस्ट्रिक्ट हुई, सुकड़ गई, और फिर सूखने के साथ साथ एक बॉर्डर लाइन जहां पे दायर होगी, और दैट लाइन डिवाइड सेपरेट इनटू देयर डॉटर सेल, यानी दैट इज इंडिविजुअल सेल, दैट इज द इंडिविजुअल सेल है, और दैट इंडिविजुअल सेल था। इस इंडिविजुअल सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुई, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो है सेल इलोंगेट हुआ, सेल लंबा हो गया, और देयर हेरिडिटी मटेरियल आर द डीएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, आल्सो कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी लाइज इन दिस डीएनए, और डीएनए द जीन consists on the gene because the DNA is the units of the DNA। तो यहां पे हम बात करेंगे कि डीएनए जो है वो मूव कर गया, जैसे ही रेप्लिकेट हुआ, एक से दो यानी 2 कॉपीज बनाई इसने, और वो दोनों कॉपीज जो हैं वो अपने अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गई। मैंने राइट किया कि पोल ऑपोजिट पोल की तरफ पहले भी बताया, और अब भी कि डीएनए और डीएनए अपने अपने सेल में ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। अब ये एक ही सेल में ऑपोजिट पोल पर गए, मतलब अब यहां से दरमियान से जो है, जैसे मैंने ये इशारा दिया एरो का, और यही सेल, ठीक है, जो आपके यहाँ पे, चूंकि मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का इशारा नहीं दिया था, ओनली सेल मेम्ब्रेन, एक ही सेल बना के विदाउट एनी शोइंग मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे चूंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जिक्र हुआ कि ये किस तरह से कंस्ट्रिक्ट होती हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया बना के कि ब्लैक लाइन सेल वॉल है, और सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, जबकि जो रेड लाइन है वो सेल वॉल है। तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, कहां से? एट द सेंटर। क्यों? व्हाई दे आर कंस्ट्रिक्ट एट द सेंटर? बिकॉज दे डिवाइड द सेल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि दे जो है वो सेल को, इंडिविजुअल सेल को, पेरेंट सेल को डिवाइड कर देंगी, किसमें? 2 इक्वल सेल के अंदर। यानी सो फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू दैट the one cell यानी सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल सेल, यानी 2 एक जैसे सेल के अंदर जो है वो बट जाएगा। सो आई से यू दैट द
asexual reproduction and the mitosis take place in the formation of the cell during the binary fission process. That binary fission process are the method of the reproduction. तो asexual reproduction, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट कॉमन मेथड है, वो बात है क्लियर. डॉटर सेल बने इस तरह से. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो यहाँ पे जो टेक प्लेस करना है वो है बडिंग. ठीक होगी बात. नेक्स्ट आर्टिकल here is that the binary fission was clear. Now we are going to discuss budding. Budding is the type of division है और asexual division है, जिसमें क्या होता है, what is budding? That is the special or the particular or in which it is take place in the yeast and bacteria. So yeast and bacteria. तो yeast is the fungus. yeast क्या है dear student? That is the fungus है. और yeast हम कहते हैं खमीर को. ठीक है, यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस आल्सो occur through the it कि हम कहते हैं कि जो yeast है ये किसकी टाइप्स है? फंगस की, फंजाई की. और बैक्टीरिया जो है ये भी, इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये बडिंग हो रहा है. ठीक है. तो हाउ विल वी डिफाइन द बडिंग? कि हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो प्रोसेस है, और प्रोसेस कौन सा है जी? तो मैंने बता दिया कि दैट इज प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो इसमें बडिंग क्या चीज है? अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, specialized structure in which form that is particular or the specialized structure in outgrowth, small outgrowth. क्या है? यानी outgrowth है. और किस किस्म का outgrowth है? small outgrowth. यानी we can say that the specialized structure, that is the specialized structure in a small outgrowth. और where small outgrowth take place? in the membrane. तो membrane होती है जो आपकी outgrow करती है. किस तरह से? I found the structure of the yeast here. किस तरह से? that is the yeast. So I found it that is the structure of the yeast है. तो here is the another line that show to the cell wall, and inner and the red line show to the cell membrane. I have told you before it that the cell wall always lie over the cell membrane. तो cell membrane beneath the inner membrane, यानी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या चीज है? सेल वॉल है. और सेल वॉल जो होती है दैट इज हार्ड होती है, और दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. हियर इज अ yeast have a nucleus because fungus is a multicellular, or that is the eukaryotes, so that is different from the bacteria. The cell differ from the bacterial cell है. इसमें हमारे पास एक particular nucleus है. Here is a nucleus and here is a mitochondria. That is the mitochondria. Yeast have its own mitochondria. That is clear from the figures. That is the outer membrane. Mitochondria have its own DNA. That is something happen. That is organelle mitochondria, but it's DNA. यानी इसका अपना DNA होता है, its own. तो ये मैं जो फॉर्म कर रहा हूं that is the inner membranes. तो inner membrane जो है वो इस तरह से इनफोल्डिंग बनाती है. That is infolding. तो इनफोल्डिंग जो है वो that is called क्रिस्टी. That is the outer membrane. ये outer membrane है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की. That is the outer membrane और that is the inner membrane. यानी इट मीन हम जानते हैं कि इसकी दो मेम्ब्रेन है, यानी दैट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली है. ये दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल
ऑर्गेनेली है, और दैट इज फाउंड इन सेल, और दैट इज द न्यूक्लियस, दैट इज द न्यूक्लियस है, और दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है जी, आपके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हियर अ स्मॉल साइज लाइक वैक्यूल, मोर देन वन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस है। और इसी तरह दैट इज द बड, ये क्या बना हुआ है, बड है, बड। और मैंने आपको बता दिया कि बड क्या है, कि दैट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन स्मॉल आउटग्रोथ। किसमें होती है ये, स्मॉल आउटग्रोथ के अंदर है आपके, स्मॉल आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड है, और दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली जो है ये क्या है, डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जाने, यहां पे इसका अपना यानी जो न्यूक्लियस होता है इसमें मौजूद होगा, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। ठीक होगी बात, ये बात इसी तरह मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, दैट इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो मैंने राइट किया, तो चूंकि इसके अंदर इसके जैसे यहां पे मैंने लिखे वैक्यूल हैं, ये क्या था जी, वैक्यूल, दैट इज द वैक्यूल। तो यहां पे ये इसका अपना न्यूक्लियस है, बड का न्यूक्लियस, ये भी मैंने लिख दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल है, और ये वैक्यूल ऑफ द सेल, और दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और एक इनर, और इनर जो है वो इनफोल्डिंग होती है। तो इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द इनर मेम्ब्रेन विच फॉर्म द इनफोल्डिंग, तो इनफोल्डिंग जो है वो क्या है, क्रिस्टी बनाती है। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, किस में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये वैक्यूल आ गया, ये आउटग्रोथ है, ये दिस इज कॉल्ड आउटग्रोथ। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इस तरह से, ये मैं जो एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन है, तो ये डॉटेड लाइन से सेपरेट हो जाएगा, यानी स्मॉल आउट ग्रोथ। ठीक है, एज इट मेच्योर, यानी यहां पे मैंने बात किया कि आपको कि ये बेसिकली क्या है, आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ होती है, और ये एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ये क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ है, क्लियर करूं, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन टू आउटवर्ड्स। ये जो आउटग्रोथ लफ्ज इशारा हुआ, दैट इज इट्स डायरेक्शनल, ये जो आप हमें इशारा दिया कि आउटग्रोथ है किसी भी साइड की तरफ, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टुवर्ड्स बिलीफ, टुवर्ड्स आउटर साइड, इट मीन एवरी, किसी भी साइड से जहां पे जो प्रेशर ऑफ द इंक्लूजन दैट लाई विद इन द सेल, इंक्लूजन प्रेशर जिस तरफ से होगा, द मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाएगी, इट मीन फॉर्म टू द बड। ठीक, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मैंने फिर बता दिया आपको कि दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन है स्मॉल आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बड। तो एज द मैच्योर, मैच्योर बड, मैच्योर बड, मैं क्लियर करता चलूं कि जैसे ही बड मैच्योर होता है तो ये क्या करता है जी, सेपरेट हो जाता है। ये यहां पे न्यूक्लियस है जी, ये न्यूक्लियस किसका है, बड का न्यूक्लियस है, और बड का माइटोकॉन्ड्रिया है, और बड का ही वैक्यूल है। ठीक होगी बात। आर द अदर इंक्लूजन मीन राइबोसोम्स ईटीसी, क्लियर होगी बात। ये तमाम जो है वो इसमें मौजूद हैं, ताकि आपको क्लियर है कि यीस्ट है ये, और यीस्ट जो है वो
मल्टी सेलुलर है। ये मैं बात बार बार बता रहा हूं आपको कि यीस्ट इज द दैट इज फंगस है। यीस्ट बेसिकली क्या है? दैट इज फंगस है। और फंगस जो है वो यूकैरियोट है, यानी फंजाई। फंजाई अपना किंगडम रखती है, ताकि ये भी आपके जेहन में रहे कि फंजाई हैज इट्स ओन सेपरेट किंगडम। फंजाई, तो दैट यीस्ट इज द टाइप ऑफ द फंजाई, यानी यीस्ट जो है वो बेसिकली इसकी एग्जांपल है, जिसमें आगे यीस्ट में उसने नाम भी हमें बताया कि सैक्रोमाइसिस सर्विसिया है। ये क्या है जी? सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। सर्विसिया। ये डियर स्टूडेंट्स, यानी मैंने आपको बता दिया कि यीस्ट था, और जिसकी उसने हमें आगे फंजाई यानी जीनस ऑफ द फंजाई है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ठीक है, जो कि टेटनस। हमने इस बात को देखें कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, सप्लिटिंग पावर होती है कि ये शुगर को अल्कोहल में, किसमें जी? शुगर को अल्कोहल में और कार्बोनिक एसिड के अंदर तब्दील कर देता है। किसमें? शुगर को अल्कोहल और कार्बोनिक एसिड के अंदर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पोर फॉर्मेशन। जी, किसकी तरफ आते हैं जी? स्पोर फॉर्मेशन है। तो ये बात स्पोर फॉर्मेशन क्या है जी? स्पोर फॉर्मेशन है। और किस में टेक प्लेस हो रही है जी स्पोर फॉर्मेशन? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास बात हो रही थी, ये भी वही बात है कि ये किस में टेक प्लेस होता है? बैक्टीरिया और फंजाई, यानी स्पोर फॉर्मेशन। जबकि ये यीस्ट था वो बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर है। तो यहां पे हमारे पास है बैक्टीरिया एंड फंजाई। जी, यहां पे पॉइंट नोट करना है कि जब बात बैक्टीरिया की आनी है, स्पोर क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक होगी बात? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये क्या है जी? दीज आर द स्पोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर किस में होती है? इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, यानी तस्बीह के दानों की तरह छोटी छोटी, यानी स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर है। और बिकॉज दैट द स्पोर ऑफ द फंजाई एंड द यीस्ट आर फ्लाई इन द एयर्स, मीन हवा में उड़ते फिरते हैं। मीन दीज आर लाइटर्स, बहुत कम है, यानी फंगस है, उल्ली जिसे हम कहते हैं, वो फंजाई है जो ब्रेड को लग जाती है, तो हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं जी। उसमें आगे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि जब ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ बीड्स और आर रेजिस्टेंट टू द एनवायरनमेंट, यानी रेजिस्टिव होती है, रेजिस्टेंट टू एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है? एडवर्स एनवायरनमेंट। एडवर्स एनवायरनमेंट कौन सा? अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंट होती है ये, यानी कुव्वत मदाफ्त रखती है किसके खिलाफ? एडवर्स एनवायरनमेंट में। यानी अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये अपने आप को लाइव रखेगी। दैट इज इट्स एबिलिटी, दैट इट्स कैपेसिटी। इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिस्टिक फॉर्म के अंदर आके ये अपने आप को क्या करती है? मेंटेन करती है, और यानी अडॉप्टेड करती है अकॉर्डिंग टू दी एडवर्स एनवायरनमेंट है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन माहौल के अंदर। तो क्या करते हैं जी? बैक्टीरिया जो होते हैं, यहां पे पॉइंट में शॉर्टली ब्रीफ करता हूं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी डेवलप स्पोर, बैक्टीरिया जो स्पोर डेवलप कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पोर। क्या है जी? एंडोस्पोर की सूरत में। और जो फंजाई है, फंजाई जो है ये डेवलप होती है, ग्रो करती है
स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, यानी ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जबकि बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर के जरिए से डेवलप करता है। तो इसकी हमारे पास सम एग्जांपल हैं, सम एग्जांपल ऑफ द फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया हमारे पास है बैसिलाई है और कॉलोस्ट्रीडियम है, जो कि एंडोस्पोर के जरिए से है, जबकि वो मैंने आपको बता दिया यानी बैसिलस इज द जीनस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस है और कॉलोस्ट्रीडियम है कॉलोस्ट्रीडियम। क्लियर की बात। और कॉलोस्ट्रीडियम जो है वो काज करते हैं यानी टेटनी, ठीक है, टेटनस भी, फूड पॉइजनिंग भी, और आपके चूंकि ये पैथोजन फॉर्म में होते हैं, और इसमें गैस गैंग्रीन भी, जिनमें मैंने बताया कि टेटनी भी काज करते हैं और फूड को पॉइजन भी करते हैं और गैस गैंग्रीन भी काज करते हैं, दीज कॉलोस्ट्रीडियम। ठीक होगी बात। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो एग्जांपल थी यहाँ पे वो बैसिलस की है, कॉलोस्ट्रीडियम की है, और फंजाई जो थी उसमें मैं आपको राइट करता चलूं, क्योंकि इसके जो फंजाई है इसके जो स्पोर होते हैं, किसके, फंजाई के स्पोर हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स होते हैं। क्या होते हैं जी? डिस्पर्स, ठीक है, डिस्पर्सल इन द एयर, यानी हवा में, डिस्पर्स इन द एयर, हवा में मुंतशिर हो जाते हैं। किसमें? हवा में मुंतशिर हो जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बात हो रही थी स्पोर फॉर्मेशन की, तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, ठीक है, और टाइनी स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे छोटे, और चूंकि ये लाइटर होते हैं वेट में, और फिर ये रेजिस्टेंट होते हैं किसके? टू द अवर्स एनवायरनमेंट के, अपने माहौल के खिलाफ, यानी उसमें मुकाबला करने की इनमें सलाहियत होती है जिंदा रहने की। तो नेक्स्ट आगे एग्जांपल मैंने दी कि बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर के जरिए से डेवलप हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और फंजाई जो है वो स्पोर के जरिए से रिप्रोड्यूस हो रही है। और स्पोर मैंने बता दिया कि स्पोर क्या चीज है, कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है इन द फॉर्म ऑफ बीड्स। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मैंने बताया कि इसकी एग्जांपल हमारे पास है बैक्टीरिया के लिए बैसिलस, कॉलोस्ट्रीडियम, और फंजाई जो है, आगे मैंने ये भी बताया कि कॉलोस्ट्रीडियम जो है वो किसके काज करता है, यानी गैस गैंग्रीन, फूड पॉइजन, और साथ ही टेटनी, ठीक है, टेटनस, जैसे हम आपको टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं, कोई भी ट्रामा चोट हो, गिर जाए तो बाज़ औक़ात ऐसा। तो फंजाई जो है वो मैंने बताया कि फंजाई स्पोर से प्रोड्यूस होती है और स्पोर डिस्पर्स होते हैं इन द एयर। नाउ दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट आर्टिकल। अल्लाह हाफ़िज़।